Good morning, class. So, our next chapter for today is comparison of unit fraction. Like fraction method. सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम यूनिट फ्रैक्शन को कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि कोई फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन दिए हैं यूनिट फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं, वो यूनिट फ्रैक्शन को बोलते हैं उनको हम। अगर वो उनमें से कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर होता है, इसको पहचानना मतलब कंपैरिजन करना। ठीक है, तो यही हम देखेंगे। तो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए यूनिट फ्रैक्शन को सबसे पहला मेथड होगा लाइक फ्रैक्शन method. In like fraction method, what we will do here, we will make the fraction like. Okay, what are like fractions? So let us see what are like fraction. लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर ऑलवेज इक्वल होते हैं। टू फ्रैक्शंस हमको गिवन होते हैं और उन दोनों का डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी इक्वल। सी इन दिस एग्जांपल 9 9, here 9 9 and here 4 4 are present in the denominator of every pair of fraction. So we can directly compare. In such cases what we do their direct comparison in the numerator. If 5 is greater than 3, since the denominator is same, then this whole fraction is greater than 3 by 7. Again 11 is greater than 7, so 11 by 9 is greater than 7 by 9. Similarly 8 is greater than 3, so 8 by 9 is greater than 3 by 9. Now 25 is greater than 13, denominator is same, so here we will see that 13 by 4 is less than 25 by 4. So this is like fraction comparison. So what we need to do is to equalize the denominator to make them like fraction. Okay, so the first method to compare a unit fraction is to do like fraction method. What we need to do is either make 2 equals to 3 or 3 equals to 2, but in fraction we can do only multiplication. Okay, so for multiplying them, so what is their LCM? 2 into 3 is 6, so make them 6. Okay, 1 by 3 को हमको 1 by 6 वो 6 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर, और 2 वाले को भी 6 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। राइट 1 by 2 first here and multiply it by 2. So on multiplying this fraction by 2, what we will get? 1 into 2, 2. 2 into 2 will be 4. So, but we need 6. So what we need to do here? We need to multiply both the numerator and denominator by 3. So when we will multiply 1 into 3, 3, and 2 into 3 is 6. So we got the denominator 6 here. Similarly, we need to multiply at the denominator by 2 and at the numerator by 2 also. ठीक है, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 2 2, 3 into 2 6. So we got the denominator same. Okay, so we'll write here, we'll make the direct comparison in the numerator. Since 3 is greater than 2, so the whole fraction 1 by 2 is greater than 1 by 3. Okay, next example of the comparison method is this. Say 1 by 3, 1 by 9. 3 can be made into 9 by multiplying it with 3. Okay, so what we'll do here, first of all we'll try to do it with 2, so it comes 6. So 6, no, we'll do 3 is multiplication. When 3 is multiplied with 1, we'll get 3, and 3 is multiplied by 3, then we get 9. Okay, so 9 is present at the denominator here, 9 is also present at the denominator of the second fraction. So what we will do, compare both the numerator of this fraction. So 3 is greater than 1, so 3 by 9 is greater than 1 by 9. So what is 3 by 9? It is nothing but 1 by 3. Okay, so 1 by 3 is greater than 1 by 9. This is the first method. This is a quite tricky or very long method, you can say. So we will always follow second method, which is quite simple, easier and easy to understand. Okay, so let's move to the second method of comparing the unit fraction. So second method is called cross multiplication method. What we do here, we'll directly multiply the denominator of first fraction with numerator of second, and denominator of second fraction with the numerator of first. Okay,
So this is nothing but cross multiplication sign. We will do 3 multiplication with we'll multiply 3 with 1 and 2 with 1 here. Okay, this is cross multiplication. इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ फर्स्ट वाले का, और दूसरे का डिनोमिनेटर पहले का दूसरे के न्यूमरेटर के साथ. सो ऑन मल्टीप्लाइंग 1/3 वी विल राइट इट बिलो 1/2. ओके, क्योंकि ये 1/2 फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, और 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा ये. ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 × 3 = 3, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 2 × 1 2. अब देखो यहाँ पे 3 मिला हमको, जो कि 1/2 के नीचे लिखना है हमको थोड़ा सा स्पेस देके, और 1/3 के लिए क्या मिला है, 2 मिला है. तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसलिए हम 1/2 को ही ग्रेटर देन 1/3 करेंगे. ठीक है, मानेंगे. नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जाम्पल सी. अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही किए हैं, सेकेंड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट के न्यूमरेटर के साथ, और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है सेकेंड के न्यूमरेटर के साथ. ठीक है, सिमिलरली अगर हम 1 × 9 करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, इसी के नीचे लिखेंगे क्योंकि इसी के फ्रैक्शन को वो डिनोट करेगा. ठीक है, और सेकेंड हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है 1 को, तो क्या मिला हमको 3. देखो अब 9 इज़ ग्रेटर देन 3. ओके, तो ये लेफ्ट वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा राइट वाले फ्रैक्शन से. ओके, 1/9 से, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है 3 से, और ये लेफ्ट में है और ये राइट में है. ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला 9 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 3 जो है वो 1/9 को रिप्रेजेंट करेगा. तो 1/3 जो होगा वो बड़ा होगा 1/9 से. सो आंसर विल बी 1/3 इज ग्रेटर देन 1/9. ओके, दिस इज अबाउट दिस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसको हम क्लास में एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए ही लिया है कि आपको एग्जैक्टली कंपैरिजन करना कैसे है. ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल हम क्लास में और डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये बस आपको थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए ये स्लाइड है. ठीक है, हम क्लास में भी और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यही किताब में दिया है आपको कंपैरिजन के लिए. ये आपकी किताब का ही पिक है. कंपैरिजन ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं. वी हैव लर्न दैट द कंपैरिजन of like fraction in the previous class of the given 2 like fraction, the one with a greater numerator is greater. जब हमको like fraction दिया है तो उसका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं कि उसका डायरेक्ट न्यूमरेटर देखते हैं, जो नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा. ये हम करते हैं like fraction में ना, लेकिन हमको यूनिट फ्रैक्शन का कंपैरिजन देखना है इस क्लास में, 5th क्लास में. ये हमने 4th में देखा था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, जो बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन सी मेथड देखी थी. लाइक फ्रैक्शन मेथड देखी थी, जिसमें हमने 2 और 3 का एग्जाम्पल लिया था, और 3 को इक्वलाइज किया था 6 में, और 2 को इक्वलाइज किया 6 में 3 से मल्टीप्लाई करके, और 3 को इक्वलाइज किया 6 में, क्योंकि दोनों में कॉमन वही है. 6 2 के भी टेबल में आता है, 6 3 के भी टेबल में आता है. हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो हमको पता चला कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3. हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने क्या करते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से, तो हमको जो नंबर मिलता है वही ग्रेटर होता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ये वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा. अभी हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए 1/2 के नीचे हमने ये 3 लिख दिया क्योंकि 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, और 1/3 के नीचे हमने लिखा है 1 × 2, दिस 1 × 2 हियर, एंड दिस 1 × 3 हियर. ओके, यहाँ से हमको ये क्या मिला 3, और ये मिला है 2. So 3 is greater than 2. That's why 1/2 is greater than 1/3. So this is all about cross multiplication method. कुछ examples देखते हैं अभी क्लास में. ठीक है, based on this, so you can do the further exercise by your own. Okay, this is all about comparison of unit fraction. So today's topic is over. So let's do the exercise 5.2 in the class.
Okay, if you have doubt, ask in class and solve the example.